चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन टू द फर्स्ट फिजिक्स डेमो क्लास एएस फिजिक्स गाइस। अब आप लोग बड़े हो गए माशाल्लाह से। यू गाइस हैव अपग्रेडेड। आप लोग की ना वो पोकेमॉन में एवोल्यूशन हो गई है। आप लोग ओ लेवल से अब ए लेवल्स में आ गए हैं, ठीक है। एंड दिस माइट बी योर फर्स्ट ऑफिशियल क्लास विद एनी टीचर, सो आई एम गोना मेक श्योर दैट यू गाइस रियली एंजॉय फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स है मुश्किल, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, बट इट्स ऑल्सो फन। इट्स फन अगर सही तरीके से पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट गाइस, जिसने कल का सेशन लिया था मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि at conceptuals we have a peer counselor, a student counselor, and I've invited her here today, and she's just gonna talk to you guys for 2 to 3 minutes because she's a very busy, बड़ी busy बंदी है मैम सिजल। उन्होंने हमें टाइम दिया, तो मिस सिजल if you could open your mic. Yes, absolutely. Assalamu alaikum, guys. I hope you guys can hear me. Yep, you can. Okay. So my name is Sejal Rizwan, as you guys know. Okay, I am a final year student at NUST, and I've been working with Conceptual Academy for the past 5 months as a peer counselor. And although time watch chota is, so I'm just gonna summarize everything up. So I'm here to help you navigate all the stress that you guys are having. Koi personal struggle hai, koi day to day, like you guys are feeling overwhelmed about anything, motivation issues hai, procrastination issues hai, ya kisi bhi tarah ka bhi academic stress hai. I just want you guys to know that I'm here to listen, support, and guide you in whatever way I can. Right? So this ये जो O level से A level का transitional period होता है, it's very overwhelming, right? किसी के लिए भी. And sometimes ये बहुत confusing हो जाता है and chaotic हो जाता है. And at times it can feel heavy as well, right? So I just want you guys to know कि you are not alone, and I'm here to support you in any way possible. So होता क्या है about life is that we need some sort of objectivity, कोई clarity चाहिए. Decisions हम लोग daily basis पे बना रहे होते हैं, ठीक है, हर तरह से big and small. But एक clarity जब आपको मिल जाती है, तो then it gives you inner peace. So I don't want you guys going into that, loophole of overthinking, and just come to me किसी भी तरह से आपका कोई भी issue हो, कुछ आपने share करना हो, you're feeling stuck, anxious, demotivated, or just want to talk to anyone. So you can always feel free and reach out to me. And I promise to create a safe space for you all. Or it's not going to be, like a usual, just a traditional therapy sessions where you guys just listen and, there's just someone in an authoritative position or bas kahi ja rahe, right? I want it to be a discussion. I want it to be about you, right? So if you have anything at all to share, even agar vent karna hai, rant karna hai, kuch bhi, so feel free to message me, and I will promise to create an ethically safe space for you all. And I wish you guys all the best. Yep. Yes. The जी best जी thing about this is कि मिस सिजल आपकी बातें किसी को जाके बताती नहीं है। अच्छा, ये बेस्ट चीज है, yes बिल्कुल नहीं बताएंगी किसी को, नहीं लाइक हमें भी नहीं पता चलता unless you agree at the start of the session that you want Miss Sejal to brief us about your situation. हमें भी कुछ नहीं पता चलता। So I'm oblivious to the fact कि आप लोग सेशन लेते भी हैं नहीं। कोई देखें घर के मसले होते हैं, किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है, किसी की सिचुएशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को डिलूलू होता है, किसी को क्या होता है, जेंजी आप सारे, ठीक है। कहने का मकसद है हमें भी पता नहीं लगता है and I couldn't care less to be honest, ठीक है। इतने बच्चे होते हैं, मिस सिजल knows what she's doing and she's the best at what she does, believe me. absolutely thank you so much for that. So होता इस तरह है कि एक तो we want कि आप कहीं भी अपनी convenience पे बैठ के you can have this session, right? So cameras बिल्कुल on नहीं होते, right? ना ही मेरा होता है, ना ही आपका होता है. If you feel comfortable तो you can turn on your camera, उसमें कोई issue नहीं है, but we prefer कि you guys don't, right? And इसके अलावा whatever you guys share, of course it's going to stay within the ethical boundaries and confidential रहती हर तरह की information. Or इसके अलावा if you guys have any sort of questions, so I will share my number in the chat box, so you can ask me anything. The most common question that I get is कि psychiatrist और psychologist में क्या फर्क है? So आप ये भी पूछ सकते हैं उसका भी कोई मसला नहीं. It doesn't really have to be related to your emotional well-being. अच्छा Or I सिजल, wish what I'm gonna do is I'm gonna add you to the official group. आप वहां yeah फिर मैसेज कर देना, ठीक है। Yeah, perfect. So चले I'm going to share a Google form with you all. So just for record keeping के कौन sign up करे, so that I know you guys, by your name, or थोड़ा सा it'll give me an outline, right? So you can fill that. I will share that soon in the group chat, and I wish you guys all the best of luck with here at us Conceptuals. थैंक यू मैम, थैंक यू गाइस। मैम सिजल, आई वांट यू टू कंटिन्यू फॉर जी
Okay. So, Sir Ali busy हो गए कॉल पे. I'm open to questions, guys. किसी का कोई question है? Oh yes, one more thing. आप लोग chat box पे क्या कहते हैं questions send करो while I clear a few things. अच्छा, so I want you guys to know that I'm not a certified therapist, right? And I don't endorse myself as one as well. I'm just a peer counselor. So what that means is that in my degree, I have taken a lot of courses. Of course, entirely the degree is focused on that thing related to peer counseling. Counseling के जितने भी techniques and aspects होते हैं related to all that, which is why I have, taken up this position and I've been working with, Conceptuals Academy Guys, and मुझे, inshallah, you guys will really enjoy these sessions, Acha. yeah, Thank you, thank you Sejal, so for joining us today. much. Thank I know you're a very busy person, but thank you. Chale. you. You That take will care, be it, right? guys. Allah Hafiz. Allah Hafiz, ma'am. Thank you for joining us. So, guys, जिस बच्चे ने करना है, this is for those students that officially join us. So, physics की class लेते हैं, chemistry or whatsoever, and then you can contact Miss Sejal as well, okay? Later on. अभी तो नहीं है ना, आज आप सबके सब उनको मैसेज कर दें. Not today. चलें guys. That was something I wanted to do. मैं कल भी करना चाहा था, but कल थोड़ी टाइमिंग नहीं बराबर हो रही थी. But now you guys know. We take care. अच्छा, आप लोग ख्याल रखेंगे guys. Don't worry. You guys are like मेरे छोटे बहन भाई. अच्छा, मेरा छोटा भाई भी अभी एएस में जा रहा है. मजे की बात ये है. एंड इतना कोई बदतमीज आज क्लास में भी नहीं आया. मतलब वो कहते हैं ना guys, कदर नहीं होती. कदर घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाली बात है. सही है कि his elder brother is a physics teacher and he's not in the class. खैर चलिए guys, let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Guys, AS physics सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आप लोगों को इस सब्जेक्ट से डराया गया होगा, ठीक है. बहुत डराया जाता है, बहुत डराया जाता है, और मैं खुद भी डराता हूँ. क्यों है मुश्किल. इट्स नॉट इजी एट ऑल, ठीक है. इट इज डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम, एंड यू रियली struggle in this subject. However, the best thing about AS physics is the course काफी छोटा होता है. You have a total of 11 chapters. अब मैं आपको बता देता हूँ कि 11 चैप्टर्स हैं कौन से. You start with physical quantities and measurement. सही है. आपको आज मैं पूरा एएस फिजिक्स का बताऊंगा. एंड वी विल स्टार्ट स्टडीिंग इन अराउंड 15 मिनट्स, ठीक है. फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, देन वी हैव काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर. उसके बाद फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर के बाद क्या आता है? और वर्क, पावर, एनर्जी. एंड देन दिस डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स. अब गाइस, इस पूरे पार्ट को जो मैंने अभी लिखा है, इसको हम जनरल फिजिक्स कहते हैं एएस में, ओके. दिस इज नोन एज जनरल फिजिक्स. ऐसा नहीं है कि जो दूसरी हम फिजिक्स पढ़े हैं वो फिजिक्स नहीं है, बट इसको जस्ट एक ब्रेक डाउन किया होता है. ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स आप लोग पढ़ते होते हैं अपने मिड टर्म से पहले, ठीक है. यूजली डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड शायद बाद में करवाया जाए, बट यूजली ये सारे के सारे आपके ना बिफोर मिड टर्म आपके कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है. दीज आर द इजी चैप्टर्स. अब मैं आपको ये बता दूंगा इसमें इजी कौन से, मैं आपको ये बता देता हूँ मुश्किल कौन से हैं. Guys, kinematics आपके पास ना, this is an easy, this is difficult, ठीक है. ये आपके पास फिर easy है. इसके एमसीक्यू बहुत मुश्किल होते हैं. दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड दिस चैप्टर इज आल्सो इजी. अब मगर ये जो डिफिकल्ट वाले हैं ना गाइस, these really test your abilities, believe me. I have no students that end up crying doing these questions, okay. कभी कभार होता है, कभी कभार क्वेश्चंस बहुत मुश्किल हो जाते हैं इनके, बट इजी सीन है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है. एंड देन गाइस वी हैव waves, superposition. I want you guys to note this down. Superposition, electricity, DC circuits, and then you have nuclear. Again guys, अब ये इधर से हमारे पास डिफिकल्ट चीजें शुरू होती हैं. डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, एंड देन न्यूक्लियर इज अगेन वेरी इजी, ठीक है. तो दिस इज योर डिवीजन ऑफ द एंटायर कोर्स. ये आपका पूरा का पूरा कोर्स है. यही आप लोग देखें इसमें, तो आप लोगों को नजर आएगा कि गाइस एवरीथिंग दैट यू सी ओवर हियर इज वेरी वेल डिफाइंड. हमारे एएस फिजिक्स की बेस्ट चीज जो मुझे लगती है ना, जो ओ लेवल में नहीं होती,
कि आपके पास हर चीज जो होती है ना वो बड़े अच्छे तरीके से डिफाइंड होती है। आपका जो कोर्स है, जो आपका कोर्स कंटेंट है, आपकी हर चीज ना बड़ी क्लियर कट उन्होंने बताया हुआ है कि यार ये इसी तरीके से होता है, यही चीज आती है आपके पास। सो दैट इज व्हाई आई लव एएस फिजिक्स। मेरी पर्सनली अगर मैंने बताऊं ना, तो आई टीच ऑल, A to B मैं पढ़ाता हूँ, ओ लेवल्स भी, एएस भी। बेस्ट एएस रहता है। आई रियली लव द ट्रांजिशन, जो बच्चे ना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, स्ट्रगल, यस इट्स सुपर पोजिशन। दिस इज लाइक अ टी, ये मेरा फैंसी टी, इट्स नॉट एन एफ। जब गैस मैं देखता हूँ बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जब मैं देखता हूँ ना, वो एक वो होता है, तड़प होती है, तड़प। तो इट फील्स गुड। साउंड्स वेरी रूड, मतलब नहीं, रूथलेस आई वुड से, बट गाइस मजा आता है। इवल, या वो क्रूएला डिवेला, मुझे गाइस याद आ गई। वो क्रूएला डिवेला थी ना, हाँ, वो 101 डेल्मेशियंस में कौन थी? गाइस आई वुड वांट यू गाइस टू गिव मी अ सेकंड। मजे की बात क्या है गाइस, सर सुन के डर लग रहा है, पढ़ना भी है। नहीं नहीं गाइस, इतनी मुश्किल नहीं है, इतनी मुश्किल नहीं है, मतलब है मुश्किल, बट इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छा गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे जरा एक बंदा मैसेज कर रहा है, जस्ट हैव टू ट्रांसफर सम मनी, हिज ओन मनी, ठीक है। और ये बड़े मजे की बात है कि उसी के पैसे उसी को भेजने हैं। यू गाइस विल गिव मी जस्ट अ सेकंड। फिर हम लोग गैस गपशप रिज्यूम करते हैं। इलाहाबाद गपशप सेशन, डोंट वरी गैस। आज ना, क्योंकि मैंने क्लास ना, व्हाट्स द लास्ट वन, यस इट्स न्यूक्लियर। मैंने असल में आज क्लास इसलिए जल्दी स्टार्ट की है बिकॉज आई वांटेड सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर गपशप। एक्चुअली गाइस, जो क्लास टाइमिंग्स आप लोगों को पता है ना, वो क्या है? क्लास टाइमिंग्स आर एक्चुअली 7 to 8। ये सिर्फ आज के दिन मैं जल्दी ले रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड दैट एक्स्ट्रा हाफ एन आवर फॉर दैट गपशप। ये काम हो गया। ये मेरे पास काम हो गया। चले बस, नहीं स्पेस फिजिक्स नहीं है अलीना। अच्छा गाइस, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दिस, बट बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको पेपर्स बताता हूँ कि आपने पेपर कौन कौन से देने हैं। गाइस, आप लोग देंगे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। पेपर 1 MCQ। MCQ गाइस आपके पास होता है 40 मार्क्स। वेटेज इसकी याद रखें, आपके पास होती है 30%। सही है? आप लोगों को पता है वेटेज का क्या मतलब होता है? डज एनीवन नो व्हाट वेटेज इज? मैथ में पढ़ा तो नहीं था ना आप लोगों ने? लाइक स्टिल, यू गाइस नो वेटेज, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है? अच्छा मैं आपको जरा थोड़ा समझाता हूँ। फिर गाइस हमारे पास थ्योरी आता है। पेपर 2 इज योर थ्योरी, माय फेवरेट, 60 मार्क्स। इसकी वेटेज आपके पास होती है 45%। देन यू हैव पेपर 4 विच इज योर प्रैक्टिकल, 40 मार्क्स। एंड इसकी हम लोग जो परसेंटेज बनती है वो 25% बनती है। ठीक हो गया, वेरी इजी। अब गाइस, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वेटेज एक्चुअली होती क्या है, as you guys can see, this is 30% and this is 45%। इन दोनों का मैं आपको सिर्फ एक सिंपल रेशियो मेथड बता दूंगा। 45/30 is equal to 1.5, राइट? सो 1 mark in MCQ is equal to 1.5 marks in theory। एक मार्क जो आप MCQ में गेन करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.5 marks इन योर थ्योरी पेपर। सही है? तो अब आप मुझे बताएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कौन सा हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट पेपर इधर, सबसे ज्यादा वेटेज किस पेपर की है? थ्योरी की। सब नो, उल्टा हो गया फातिमा। गैस आपके पास जो सबसे ज्यादा वेटेज होती है आपके पास होती है थ्योरी की। आपको सबसे ज्यादा बेसिकली थ्योरी में मार्क्स चाहिए, ठीक है? आपने सबसे ज्यादा मार्क्स थ्योरी में लेने होते हैं, सो यू कैन गेट दोज ए। अब याद रखें गाइस, आपको मैं स्टैट्स बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास में डरा नहीं रहा आप लोगों को, बट ओनली 16%, 15%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट टाइम, 15% ऑफ यू विल गेट एन ए। अच्छा मजे की बात बताता हूँ, एक होता है एएस लेवल एंड देन गाइस यू हैव A2। एएस लेवल में यू कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ अ स्मॉल ए। याद रखें, नोवोकास यू गिव 6 पेपर्स, ठीक है? याद रखें गाइस, एएस जो होता है हमारे पास, एएस उसमें आपके पास लोअर लेटर केस होता है, लोअर। सही है? मतलब छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी,
ई एंड देन आपके पास यू आ जाता है अनग्रेडेड, ठीक है। फेल नहीं होता, एफ नहीं होता इधर, ठीक है, वो स्कूल की तरह। बट इधर आपके पास बेसिकली यू आ जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे माशाल्लाह से यू भी लेंगे, ठीक है। तो दैट इज द रियलिटी, स्टार्ट बताती है, अच्छा नॉट मी। तो गाइज ओनली 15% ऑफ यू वुड गेट एन ए, ठीक है। 15% भी मैं काफी अच्छा आपको बता रहा हूँ, विच मीन्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 out of 7 पीपल। मतलब आप में से, मैंने आपको पहले दिन बताया था, 1 out of 7 पीपल विल गेट एन ए, ठीक है। मुझसे पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स ज्यादा का आएगा, बट खैर गैस, थोड़ी सी सेल्फ मार्केटिंग भी साथ साथ करनी पड़ती है। 1 out of 7, ओनली 1 out of 7। हाउएवर जब आप A2 में जाते हैं गैस, A2 में फिर आपके पास ए स्टार आता है। देर इज नो ए स्टार इन AS। एंड अब आपके पास लेटर्स हो गए कैपिटल, सारे के सारे, बिकॉज यूर इन A2। जो आपका A2 का रिजल्ट आएगा वो आपके पास कैपिटल लेटर में आएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये मेरी बात बताएं। अच्छा गाइज, जो जो नए आए ना, जिनको नहीं पता, गाइज व्हेन यू से व्हेन आई से क्लियर, तो सब ने यस बोलना होता है। यस राइमा। A2 का जो ए स्टार होता है वो AS में ए होता है। बट यू नीड अ वेरी हाई ए इन AS इफ यू वांट एन ए स्टार इन A2। यू नीड टू रिमेंबर दैट, ठीक है। ए स्टार के लिए आपको एक हाई ए चाहिए होता है। अब बड़े मजे की कहानी सुनाऊंगा गाइस बिफोर वी स्टार्ट। बैक व्हेन आई वाज इन ए लेवल्स, मेरा एक दोस्त था, पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मा था, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉम्पोजिट करें अरीफा, तो आपका सिर्फ A2 का ग्रेड आता है, फिर आपको AS का ग्रेड नहीं मिलता, सही है। उस्मान करेक्ट। गाइस बड़े मजे की कहानी बताऊंगा। मेरा एक दोस्त था, बड़ा 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 संगी था, ठीक है। आई वॉज अ वेरी नाइस फ्रेंड ऑफ माइन। एंड हमारे जब ए लेवल के रिजल्ट आए, अब सब क्या आ गए गाइस, उसने दिया था अकाउंटिंग का पेपर, ठीक है। अब अकाउंटिंग का पेपर उसका ई आ गया। A2 में जब आप अकाउंटिंग का पेपर दिया ना, तो उसका असूलन कैपिटल ई आना चाहिए था, ठीक है। उसको ये छोटा ई बड़ा ई नहीं पता था, इसलिए मैं ये पहली क्लास में आप लोगों को बता रहा हूँ। गाइस उसका आ गया A2 में छोटा ई। A2 में छोटा ई का मतलब होता है कि आपने A2 फेल कर दिए, you have only passed AS। Guys, just give me a second, there's someone on the door। अच्छा गाइज, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ बड़ा जरूरी क्यों है। गाइज मेरा एक दोस्त था, हाँ, कंटिन्यूइंग फ्रॉम द कहानी, कि उसका आ गया छोटा ई इन A2। छोटा ई इन A2 मींस, अलीना नहीं, दैट्स नॉट हाउ एएस गोस। उसको लगा पास हो गया, उसने हमें खाना वाना खिलाया, उसने हमें ट्रीट दी कि मेरा ए लेवल्स निकल गए, वो उसे पास करना चाहता था, ठीक है। फन फैक्ट, आफ्टर ए फ्यू डेज ही गॉट टू नो, उसका कैपिटल ई नहीं आया, उसका छोटा ई आया, मतलब ही फेल्ड A2। उसका A2 फेल हो गया था गाइस, उसने हमें फेल्ड A2 पे भी हमें खाना खिला दिया था। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास गाइस जब A2 आप लोग करेंगे ना, तो आप लोगों ने देखना है, मतलब आपको ये सिर्फ छोटे और बड़े का फर्क पता होना चाहिए, सही है। एंड गाइस इट वाज अ वेरी सैड डे फॉर हिम एज वेल। बट खैर हमने तो खाना खा लिया था, हम तो खुश थे कि उसने हमें बड़ी अच्छी ट्रीट दी थी कि मेरा ए लेवल्स निकल गई है, सही है। तो ये भी हो सकता है। तो गाइज यू शुड नो दिस, ओके, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगेन गाइज वेटेज का भी आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सबसे ज्यादा फोकस आपका पेपर 2 पे होता है। हाउएवर इट डज नॉट मीन कि आप पेपर 1 और पेपर 4 पे फोकस नहीं करते। बट गाइज इफ यू मेस अप योर थ्योरी, आपका ग्रेड गया। इफ यू मेस अप योर MCQ, यू कैन मेक अप फॉर दैट इन योर थ्योरी। बट आप थ्योरी के, अगर आपका मेसअप हो गया ना, फिर मेकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डू यू गाइज गेट मी? नहीं, पेपर 3 जो किन्जा होता है आपके पास, दैट इज प्रैक्टिकल। ओ सॉरी, ये तो ATP नहीं है गाइस, दिस इज पेपर 3। माय बैड। वो मुझे ओ लेवल में ATP याद आ गया, पेपर 3। माय बैड किन्जा। फिर A2 में जाके गाइस, A2 में जब आप लोग जाएंगे, आप लोग देंगे पेपर 4 एंड पेपर 5। दिस इज अगेन थ्योरी एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ये पेपर 5 जो होता है गाइस, दिस इज योर ATP अगेन। एंड जो जो बच्चे मेरे साथ दोनों साल पढ़ेंगे गाइस, तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग सफर जो हम लोगों ने करना है। अच्छा सफर, ये मैं SUFFER वाला सफर कह रहा हूँ, ठीक है, नॉट द अदर वे राउंड। ये बहुत लंबा सफर है जो आप लोगों ने साथ गुजारना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इट्स गोना बी हेल ऑफ अ टाइम। क्लासेस हम लोग गाइस गपशप लगाते रहेंगे। अच्छा एक्चुअली मैं अभी पढ़ाई इसलिए नहीं रहा, आई एम वेटिंग फॉर 7 o'clock।
क्योंकि क्लास एक्चुअली 7 बजे शुरू होगी, पढ़ाने वाली क्लास है वो 7 बजे शुरू होगी। एंड गाइज, अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एएस फिजिक्स, आस्क। नो उस्मान, आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट, बिकॉज इफ यू मेस अप इन एएस इन composite ना, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता टू मेक अप फॉर इट। इफ यू मेस अप इन एएस यू हैव एन अक्टूबर नवंबर। पर देखें, ए में आप लोग याद रखना ना कि ए लेवल्स में ना, ए लेवल्स में एक चीज होती है, ये चीज याद रखें। फॉर एवरी, ये अपनी किताबों पे लिख लें, फॉर एवरी मई जून सेशन देयर इज एन अक्टूबर नवंबर सेशन। ये चीज ना गाइस अपनी किताबों पे लिख लें, सही है। उस्मान, जो स्कूल सिर्फ कॉम्पोजिट करते हैं तो करें, वो बात नहीं है। मैं, आपने मेरे से एक पर्सनल ओपिनियन पूछा है, तो उस पे सर फिजिक्स सारा डिपेंड्स आपकी एक्सपर्टीज क्या है। मैथ हो जाती है, फिजिक्स भी हो जाती है, सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं गाइस। हजारों बच्चे एज एन स्टार लेते हैं गाइस। बुक किसी ने नहीं लेनी, किसी ने भी बुक नहीं लेनी। अच्छा गाइस, जो बच्चे पूछे कॉम्पोजिट क्या होता है, कॉम्पोजिट मींस कि आप एएस और ए टू एक साथ दे दें, बोथ एएस ए टू। सही है, जो आप लोग ए टू में जाके एएस का भी पेपर साथ देते हैं, मतलब आप दोनों साल के जो पेपर होते हैं, आप P1 to P5, P1 to P5 आप सारे के सारे एक साथ दे रहे हैं। सही है। एंड गाइस, मैं फन फैक्ट बताऊं, व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स, मैंने गाइस एएस में कॉम्पोजिट दिया था, मैथ कॉम्पोजिट। अब अगर किसी को नहीं पता कि एएस मैथ कॉम्पोजिट का मतलब क्या है, कि मैंने ए टू के पेपर एएस में दिए थे, मतलब मैंने सेकंड ईयर के पेपर भी फर्स्ट ईयर में दिए थे मैथ के। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट हैपेंस। सही है, तो एएस मैथ कॉम्पोजिट मैंने दिया, इट्स पॉसिबल, ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉसिबल है। महत सर, मोस्टली टॉपिक्स आर सेम एज, नो महत, दे आर नॉट सेम एज ओ लेवल एट ऑल। बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। महत, इट्स मिनिमम 3 times मोर डिफिकल्ट। यू गाइस विल नो व्हाई, पहले चैप्टर में तो समझ नहीं आएगा। ठीक है सर, व्हाट थिंग शुड वी डू इन ऑर्डर टू गेट दोस 15% ए ग्रेड सर, क्वांटम फिजिक्स वो ए टू में है महत। कुरल तलैन सोमरो, यू गाइस नीड डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट गाइस। असल में कंसिस्टेंसी नहीं है लोगों में आजकल, स्पेशली आप लोगों में तो बिल्कुल नहीं है। यू गाइस कैन नॉट स्टिक टू अ डिसीजन। ठीक है, तो दैट इज वेरी, दैट्स अ बिग इशू। एवरी ईयर गाइस हमारे पास ना क्लासेस में, चूंकि आई बीन टीचिंग ए लेवल सिंस कंटिन्यूअसली सिंस a few years now, 5 years, and every year a lot of students join my session in the first month. Okay, दूसरे महीने पढ़ा, पढ़ लिया, ठीक है। तीसरे महीने से आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, सर हमें रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, हमें रिकॉर्डिंग देते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग दे दी मैंने उनको, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग नहीं देखता गाइस, कोई बच्चा नहीं देखता। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। आप लोग कह रहे होंगे अभी, आई नो एट दिस पॉइंट ना आप लोग बहुत मोटिवेटेड है, एंड आई वांट यू गाइस टू बी मोटिवेटेड। अच्छी बात है गाइस, अन्नी पादनी है, अन्नी पादनी नहीं भूलना है। ठीक है, आप लोगों ने अर्शमान हो जाता है। आई टीच ए क्यू गाइज, नेक्स्ट 5 minutes इज ओनली फॉर क्वेश्चन। ओके, नो हानिया, इट्स नॉट रेलिवेंट एट ऑल। आमना, अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं। अर्शमान, आई टीच ए क्यू स्टूडेंट्स से, आई हैड अ बैच ऑफ 130 स्टूडेंट्स दिस टाइम फॉर आगा खान एंट्री टेस्ट। आप लोगों को जिन्होंने मेडिकल करना है उन सबको आगा खान का पता होगा। ठीक है, एंड गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट एज दैट एग्जामिनेशन वर ए लेवल स्टूडेंट्स। बिलीव मी, ये एक मिथ है। हाँ, ये होता है कि अगर आपने गवर्नमेंट में जाना है तो थोड़ा नुकसान होता है आपको, बट अगर इफ यू मेक अप फॉर दैट एंड एमडी कैट हो जाता है। नो माज, आई वाज नेवर, आई वाज हर कोलीग। माज हम दोनों पढ़ाते थे ना यूआई टुगेदर। सर इंग्लिश टू या उर्दू, प्लीज सजेस्ट उर्दू। गाइस, इंग्लिश का आपको पता है ए लेने की परसेंटेज इज 1%, आफ्टर एवरी, आउट ऑफ एवरी 100 पीपल ओनली एक बच्चे का ए आता है इंग्लिश में। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो अलीना। चलें गाइस, पढ़ाई का टाइम हो गया, 7 बज गए बस। मैंने कहा था 5 मिनट क्वेश्चंस के लिए होंगे, एंड अब हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। हाउ टू बिकम सर सरदार अली अब्बास इन फिजिक्स। और गाइस, आप लोग मेरा नाम है कजलबाश क्यों भूल जाते हैं, मेरा के नाम में कजलबाश भी आता है। नाम पूरा गाइस, नाम पूरा। ठीक है, अब गाइस, हाउ डू वी बिकम, सर यू टीच एएस बायो, व्हाई वुड आई टीच एएस बायो, सुमेरा, आई एम अ फिजिक्स टीचर।
हाँ एकेडमी में पढ़ाई जाती है, वी हैव सर दाऊद फॉर दैट, बट नॉट मी, ओके, नेवर मी, इट कुड नेवर बी मी। आई हेट बायो गाइस, आई हेट बायो, मैं सच आपको बता रहा हूँ। मैं मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 50 से अराउंड 60 स्टूडेंट्स मेरे इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड आई हेट बायो, आई हेट मेडिकल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई कुडंट हेट इट मोर। सही है। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं, सही है। गाइस चैप्टर नंबर 1, सबसे मेरा फेवरेट चैप्टर, सबसे इजी चैप्टर, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अच्छा, अगर किसी को भी मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही तो गाइस वेरी सून यू विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। सर बाय वन शुड बी मार्च मार्च टू 2026, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, ठीक है। ये चैप्टर गाइस आपके पास सबसे इजी है, एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट योर कोर्स। अगर आपको ये नहीं आता ना तो आप लोगों को फिर आगे जाके कुछ चीजें समझने में बड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। और अगर किसी को मेरी राइटिंग नहीं समझ आ रही गाइस तो आपको टाइम के साथ आदी हो जाएंगे आप लोग, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दैट इज एन ईजी थिंग। राइटिंग का जो मसला है ना वो मेरा बड़ा पुराना है, ऑफकोर्स हम सब लोग ओ लेवल पढ़े हैं और आप लोगों को पता है ओ लेवल में राइटिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं होता, ठीक है। एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड, यस एवरी चैप्टर इज कनेक्टेड। अगेन गाइस आई जस्ट वांट 1 मिनट ऑफ ब्रेक, मैं पानी ले आता हूँ अपने लिए, देन वी विल स्टार्ट। आप लोग रेडी हो जाएं। अच्छा गाइस, आप लोगों ने एक बात याद रखनी है इसमें कि अगर आप एक चैप्टर छोड़ते हैं ना तो आप अगला नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी चैप्टर इन एएस फिजिक्स इज कनेक्टेड। मतलब इट्स नॉट कनेक्टेड टू द नेक्स्ट चैप्टर, ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर पूरे सिलेबस से कनेक्टेड है, बट जैसे अब चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर्स ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपके पास काफी क्वेश्चंस इन दोनों के एक जैसे आते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन होगा आपके पास बड़ा सा, और उसमें आपके पास पार्ट्स होंगे, क्योंकि एएस में आपके पास 15-15 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। अच्छा 60 मार्क्स का पेपर है ना, तो कभी कभार 15 मार्क का भी एक सवाल आ जाते हैं जिसमें दे टेस्ट एवरीथिंग। सो व्हेन दे आर टेस्टिंग एवरीथिंग यू नीड टू नो एवरीथिंग, ओके, ऑल टुगेदर। खैर चैप्टर नंबर 1 गाइस, विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक। गाइस हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज क्या होती हैं? 7 बेसिक क्वांटिटीज, जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ द यूनिवर्स भी कहते हैं। हम्म, बताएं। है 7 बेसिक क्वांटिटीज, ये भी नहीं आता, ओ लेवल वाली बात है। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, वर पसबंद का, खान दब वर पसबंद का निश्ता बस। अच्छा करंट हो गया, उसके बाद हमारे पास ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। गाइस पता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी से मुझे हमेशा क्या याद आता है? फॉर सम रीजन ना मुझे वो याद आ जाता है, हैरी पॉटर। हैरी पॉटर में वो पेट्रोनस जो होता है, व्हाट डू यू कॉल, वो कौन सा स्पेल था वो जो वो भी करता है, हैरी पॉटर। एक्स लूमिनस को कुछ नहीं, एक्सपेक्ट्रो पेट्रोनियम, नहीं नहीं वो तो, हाँ एक्सपेक्टो पेट्रोनियम मुझे याद आ जाता है, हाँ ल्यूमिनस से, जिसमें गाइस वो निकलता है, वो हिरन निकलता है वो जब वो स्नेप करता होता है। फॉर सम रीजन ना गाइस मुझे ये चीज ना, जब भी मैं ये चीज करता हूँ ना, एंड आफ्टर एक्सपेक्ट्रो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम नहीं पेट्रोनियम था, सही है। आफ्टर एवरी टाइम आई टीच दिस क्लास ना मैं हमेशा वो मूवी देखता हूँ जाके हैरी पॉटर की। आई एम अ हैरी पॉटर फैन गाइस। एंड देन गाइस वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब गाइस हमारे पास लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, एम। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, एस। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम्स, याद रखें, केजी। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन, केल्विन, के। करंट इज मेजर्ड इन एम्पेयर,
ए एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। गाइस ये मैंने अलग क्यों लिखे हैं, अलग कलर कलर में? क्योंकि गाइस ये आपके पास यूज नहीं होते, ठीक है? ये आप लोग एएस फिजिक्स में आप लोग ये यूज नहीं करते। दिस इज कैंडेला। कैंडेला आप चैप्टर नंबर 14 विच इज द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ A2 फिजिक्स, मतलब ये आप बिल्कुल पहला चैप्टर पढ़ें, जो बिल्कुल आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आप कैंडेला पढ़ेंगे, ठीक है? एंड इधर हमारे पास आ जाते हैं मोल। एंड मोल के लिए हम MOL लिखते होते हैं, बस ई हटा देते होते हैं। एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट। आई वांट यू गाइस टू नोट दिस डाउन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज गाइस लिखा करें। याद रखें गाइस, जो जो बच्चा मेरी क्लास ले लेना, यू डू नॉट नीड एनी बुक, यू डू नॉट नीड टू बाय एनी टॉपिकल, यू डू नॉट नीड टू बाय एनी ईयरली। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द क्लास। आपको सिर्फ एक रजिस्टर, एक कैलकुलेटर और एक पेन चाहिए होता है, ठीक है? प्लीज शो द एंटायर पेज। दिस इज द एंटायर पेज। Oh, I have see some old students. I see some old students as well over here. Guys, in the last 10 minutes ना guys, आप लोग मुझे क्लास में ना डिस्कशन करेंगे, गपशप लगाएंगे, ठीक है? बड़े मजे की एक टॉपिक मेरे दिमाग में, मैं हमेशा स्टूडेंट से पूछता होता हूँ। एंड गाइस डोंट वरी, नमाज ब्रेक होगी जस्ट 7:30 पे, नमाज ब्रेक होगी 7:35 तक। क्लास में वुजू करके बैठा करें, उठेंगे जाके 3 फर्ज पढ़ के आ जाए बस, क्लास के दौरान ही। हैज एवरीवन नोटेड दिस डाउन? परफेक्ट। अब गाइस, अब मैं आपको फिजिक्स से पहले ना थोड़ी बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को, बड़े लोगों को मैथ भी नहीं आती। कैन समवन टेल मी, इफ आई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनटू एक्स क्यूब, व्हाट इज द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? एक्स रेज टू पावर 5। अच्छा, फन फैक्ट, तो बड़े मजे की बात है गाइस, आप लोगों को ये चीज आती है। एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ क्यूब, सही है? नहीं है सही गाइस, 6 होगा, ठीक है? आगे, उसके बाद गाइस क्लास अभी स्टार्ट हुई है ना? यस हानिया, जो टीचिंग टीचिंग वाला पार्ट है वो अभी स्टार्ट हुआ है। एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 6। देन एक्स क्यूब ओवर एक्स रेज टू पावर 5, इसका क्या आंसर है? एक्स रेज टू द पावर ऑफ -2। अब ये -2 कैसे आया? गाइस इस मैंने 5 को मैं ऊपर ले आया ना, सब्ट्रैक्टेड दिस, 3 - 5 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -2। ठीक, तो बड़े मजे की बात है गाइस, आप लोगों को ये चीजें आती हैं। यूजुअली ना बच्चे गलत कर देते होते हैं, ठीक है? हाँ, दिस इज इंडेक्सेस। बट गाइस आप मुझे ये बताएं, x - 2 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर क्या आंसर आता है? ये देखें, गलत हो गया ना। अच्छा हाँ, अच्छा, आप पावर की बात करें तो फिर ठीक है, हाँ हाँ। नहीं देखें गाइस, आई सी रॉन्ग आंसर्स हियर नाउ। ये जो एक्स रेज टू पावर -4 जितने बच्चे कह रहे हैं सारे गलत है। एक्स रेज टू पावर -2 + 2, x raised to power 0, and anything raised to the power of 0 is what? 1। तू ही हकीक, तू ही गाइस, 1 1 1 1। सही है। देखिए बेसिक चीजें गाइस, मैंने कहा था नहीं आती, इसलिए मैंने कहा मैं करवा दूं आप लोगों को। बड़ा जरूरी है कि आपको ये चीज आए, बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ डिपेंड्स ऑन दिस। विल स्टार्ट विद गाइस फॉर्मूलाज। अब आप लोगों ने इधर नोट डाउन कर ले, ये आपका स्टैंडर्ड इंडेक्सेस है, बेसिक इंडेक्सेस है। इसके बाद जो भी हम लोग चीज कर रहे हैं ना, आपका पूरा चैप्टर उस पर बेस्ड। एंड आप लोग देखेंगे गाइस कि कितना इजीली यू विल बी एबल टू सॉल्व पास्ट पेपर क्वेश्चंस, क्योंकि इस क्लास के एंड में गाइस हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चंस आज करेंगे। गाइस आप लोगों में से कोई लोग पंजाबी हिप हॉप म्यूजिक सुनते हैं? करण औजला, द न्यू वंस, शो करण औजला, रमेश एंड ऑल ऑफ दोस पीपल, है कोई शौकीन आप लोगों में से?
ताहा विल सी रिकॉर्डिंग देखेंगे। अभी गैस क्लास तो स्टार्ट हुई है, अभी तो स्टार्ट हुई है गैस। अभी किधर किसी ने कहीं नहीं भागना। अब गैस इसके बाद होता क्या है, ठीक है, ये तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। नाउ स्टार्टिंग विद द फॉर्मूलाज। गैस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट? या लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ, जिस तरीके से भी आप लिखें। अब आप लोग ने मुझे ये बताना है गाइस, लेंथ और ब्रेथ बोथ आर फॉर्म ऑफ लेंथ, राइट? दोनों का यूनिट हमारे पास क्या होता है? बोथ विल हैव द सेम यूनिट, एम आई करेक्ट? मीटर होगा ना? इसका भी मीटर होगा, इसका भी मीटर होगा। सो मीटर इंटू मीटर गाइस, आंसर क्या होगा मेरे पास? मीटर स्क्वायर। तो गाइस एरिया को तो आई एम प्रीटी श्योर सबको पता था मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, पहले से। हाउएवर गाइस एज वी मूव अहेड, अब हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, विच इज बेसिकली एम इंटू एम इंटू एम। इसका हमारे पास क्या आएगा बच्चों? मन के सच्चो दिल के अच्छो, एम रेस टू पावर 3। अब गाइस इसके आगे जाते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे guys, हमने पूरा का पूरा खत्म करना है, सो वी कैन स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस देन, ठीक है? आई रियली वांट कि हम आज ही क्वेश्चंस करें। फिर हमारे पास गाइस डेंसिटी आ जाती है। डेंसिटी 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 क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। अभी देखिए हम लोगों ने ऊपर वॉल्यूम के लिए फाइंड किए हैं, तो मास हमारे पास बच्चों क्या आ गया? इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ आसानी के लिए। ये केजी हो गया, ये हमारे पास मीटर क्यूब हो गया, तो आंसर क्या आएगा? अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना गाइस, ऑफ कोर्स आप लोग इधर केजी गाइस डू नॉट एनोट ऑन द स्क्रीन, ओके? आई कैन सी द नेम्स जो बच्चे करते होते हैं। अब गाइस इधर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, देखिए, आप लोगों ने कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ आंसर नहीं देना। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, राइट? न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है ना गाइस? तो मैथ पढ़े भी इतना टाइम हो गया, मैं करेक्ट ऐसे ही है ना? न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर, सही है। तो जो डिनोमिनेटर में आपने कभी कुछ छोड़ना नहीं होता, तो इसका एक्चुअली आंसर होगा kgm-3। बात क्लियर हुई है? आपका एक्चुअल आंसर है kgm-3। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4। अब गाइस वेलोसिटी, एमसीक्यू कहता हूं फॉर्मूला नंबर 4। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट गाइस हमारे पास क्या यूनिट होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, सेम थिंग, मीटर। टाइम क्या है? सेकेंड। तो आंसर गाइस हमारे पास क्या होगा? सारा आपने फिर गलत फॉर्म में लिखा है, ms-1। यू ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो, आपने डिनोमिनेटर को हमेशा क्लियर करना होता है। फिर गाइस फिफ्थ फॉर्मूला, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन गाइस हमारे पास क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब याद रखें एक चीज आप लोगों ने गाइस हमेशा याद रखनी है कि चेंज इन एनीथिंग इज इक्वल टू चेंज इन एक्स का जो यूनिट होगा और एक्स का यूनिट जो होगा इज गोना बी सेम। तो चेंज इन एक्स एंड एक्स हैव द सेम यूनिट, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट। तो इधर हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट? ms-1 एंड देन t इज सेकेंड्स, ms-2। इजी। इधर तक गाइस सबको सब कुछ क्लियर है? आई नीड a yes from everyone। Everyone, guys, everyone. Sir, explain the ACCA on. Huh? Safa, I don't understand your question. Guys, थोड़ी जान जज्बे के साथ यस बोला करें, इतने डेड आप लोग क्यों हैं? ज्यादा यस डाला, एस डाला करें, ज्यादा पी डाला करें। हाँ गाइस, जज्बे के साथ अन्नी पा देनी है गाइस क्लास में आप लोगों ने। आज गाइस एक्चुअली द थिंग इज ना कि दिस इज अ डेमो क्लास, एनीवन कैन जॉइन दिस क्लास। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्स बंद रखते हैं। एक्चुअल क्लासेस में यू गाइस विल हैव अ चांस टू टॉक, ठीक है? तो वो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये वाली थोड़ी डेमो क्लास था इसलिए बोरिंग हो जाती है, क्योंकि आपके पास माइक्स बंद होते हैं। यू नेवर नो, कोई बच्चा आ जाए। आपको पता है हमारे मुल्क में ना एक तो तमीज की बहुत कमी है, ठीक है? तमीज और शलवार कमीज, हाँ 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 गाइस, बच्चों वाला जोक हो गया। बट हमारे पास ना बहुत कमी है इस चीज़ की, तमीज़ की। तो वी हैव टू मेक श्योर कि यार जब हम लोग ऐसे कोई क्लास रखें ना,
विच इज ओपन फॉर ऑल। हम लोग अपने माइक्स बंद रखते हैं, ठीक है। एंड करने को तो कोई कुछ कर भी ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मैं मुझे क्या ही होगा, ठीक है, कोई क्लास में आके कुछ बोल ले। बट स्टिल विच इज़ वेरी सैड गाइज, बड़ा हमारा वो है, अलमिया है मुल्क का। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ guys, हमारे मुल्क में तमीज़ बिल्कुल नहीं है। मतलब यू गाइस विल रियलाइज दैट सून। और आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जिनमें अभी नहीं है, बट यू गाइस विल लर्न। आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। गाइस फोर्स हमारे पास क्या होती है? एक्सेलरेट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास फोर्स का यूनिट क्या आएगा? के जी एम एस माइनस टू। बस के जी एम एस माइनस टू। नहीं 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 गाइस, न्यूटन नहीं है। अब आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ये जो होता है ये होता है हमारे पास बेसिक क्वांटिटी। अच्छा, ये एसआई बेस यूनिट्स हैं। जो एन है आपके पास फोर्स का, एन जो है ये डिराइव्ड यूनिट है। सही है। तो आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपके पास इसका नहीं आता, आपके पास आता है कि आपने बेस यूनिट फाइंड करना है, ठीक है। अब गैस चूंकि आप लोगों ने ये कर दिया, आई वांट यू गैस टू ट्राई अ फ्यू वंस नाउ। और उससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पता है पॉइंट क्लियर होगा। 7, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। 8, 8 आपके पास क्या देता है? वर्क डन आ जाता है, वर्क डन कर लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू FD, एंड 9 इज इक्वल टू GPE इज इक्वल टू MGH। आई वांट यू गाइस टू फाइंड इन तीनों के आंसर्स खुद। जल्दी गाइस, जल्दी 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 जल्दी, जरा जरा जल्दी जल्दी जल्दी। वैसे एक तो मेरे अंदर का ना वो, एक तो मैं इतना बेसुरा गाता हूँ, ठीक है, ऊपर से मेरा वो आ जाता है, एकदम से अंदर का आतिफ असलम जाग जाता है। नो, ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन। किन्जा रॉन्ग, मुबशिर रॉन्ग। नहीं मुबशिर नहीं, सॉरी, मुबस्सिरा। सॉरी सॉरी, मैंने मुबशिर, मेरी जरा नजरें खराब हो गई हैं गाइस, चश्मे पहनने दो मुझे। सारा अदील आपका भी गलत है। गाइस वेरी फन। एक बात बताएं, आप लोग किस स्कूल एंड सिटी से हैं गाइस? जरा चैट में ये तो बताएं। चैट, मैं कितनी चैट एक्टिव गाइस। किधर से आप लोग, विद स्कूल एंड सिटी? जब मजे की बात है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं गाइस, जिन लोगों ने किया है ना वो एनरोल, दे वर लाइक सर हमें डेमो क्लास देने की क्या जरूरत है, मैं अपना कोई पुराना स्टूडेंट नहीं आया हुआ। सफा, पाइन कैंपस, BMI इस्लामाबाद, अलीना, BMI। BMI के साथ हमारा बॉस गाइस वो है एक बीफ है, आपको पता है? अलीना, डू यू नो अबाउट द बीफ कॉन्सेप्चुअल्स एक्स BMI? नॉट BMI बट सम टीचर्स फ्रॉम BMI, डू यू नो दैट बीफ? Yep, Safa, I remember you. I remember. I have a very good memory. Kaizen, hi Lahore, Kaizen, Kaizen. Guys, while you doing this, तो ये डिस्कशन करते हैं। काइजन, अच्छा, उसकी जूनियर हैं आप तो, नहर की। LGS लाहौर, अलिशबा which LGS? There's like 10 LGS। आप अलिशबा काशिफ है या अनीला काशिफ है? दो नाम लिखे हुए हैं। OPF, Crescent, Crescent High School। हानिया, we had so many students 2 years back from Crescent of, I remember, एक Crescent और एक बर्की कैंपस। बर्की जो था कौन सा, लकास बर्की। ओ इतना बचा था, इतना बचा था हमारे पास इन दो कैंपस से। गाइस गिव अ ट्राई टू ऑल ऑफ दीज। अच्छा, इन सबको जरा ट्राई दें। एंड गाइस अजानें हो गई ना सबके शहर में? जी। अब एक तो मसला ये है, हम लोग मुल्क में अलग अलग जगह पे रहते हैं ना, तो आप अजानें भी हर बंदे की ना अलग टाइम पे होती हैं।
तो ऐसा करेंगे 725 पे जाएंगे, ठीक है, 725 to 730। बस 25 पे चल जाते हैं। यूसुफ आप किस शहर से हैं? मोहम्मद यूसुफ, आर्ट यू फ्रॉम सऊदीया? आप वो वाले यूसुफ तो नहीं है? डेरा गाजी खान। हानिया 725 पे। गाइस मुझे बताएं, जल्दी आंसर्स बताएं। हानिया रॉन्ग। अच्छा, देन देयर इज अ हनिया एंड देन देयर इज अ हानिया। ऐसे ही है। HANIA हनिया एंड HANIYA हानिया। दैट्स हाउ प्रोनाउंस योर नेम, राइट? एम स्क्वायर डी स्क्वायर, एम स्क्वायर और टी स्क्वायर तो अदील कुछ होता ही नहीं है। सारी गलत है जालमो, सिर्फ ये कौन है? हाँ, अब ये देखिए मुबस्सिर ने सही किया। अब नूर उस्मान ने भी ठीक किया। अब ठीक हो गए सारे के सारे। मतलब काफी लोगों का ठीक हो गया, तो अब मैं सॉल्व करवा देता हूँ। गाइस एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, whenever note it down, whenever you are finding the units for something, आप कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? यू इग्नोर कांस्टेंट, यू गोस देम, ठीक है, आप उनको निकाल देते होते हैं। तो हमारे पास गाइस m क्या आएगा? m इज kg। एंड व्हाट इज v स्क्वायर? m s - 1 होल स्क्वायर। तो गाइस जब हम लोग किस तरीके से करेंगे, m की पावर हमारे पास 1 है, तो आंसर हमारे पास आएगा kgm स्क्वायर s - 2। बस इन्नी दी गल है, इन्नी गल है। सही है, इन्नी सी गल है गाइस। ये आप लोगों को हो गया। गाइस इसमें मुझे मेरा एक डायलॉग याद आ गया। कोई तोता है कोई मैना है, मेरा क्या डायलॉग है गाइस? भट्ट साहब का डायलॉग है। कोई तोता है कोई मैना है। गाइस आई वांट यू गाइस टू रिपीट आफ्टर मी एक बार, वो आपको पता है ना शायरी में होता है, कोई तोता है कोई मैना है। नहीं, धोखे में खैर रहे, वो नहीं है। कोई तोता है कोई मैना है, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होना है। गाइस आप लोगों का ये मोटो है इस क्लास का, ठीक है? 3 4 मोटोज है गाइस जो हम लोग लेके चलेंगे। कोई तोता है कोई मैना है, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होना है। एंड उसके अलावा दूसरा हमारा है अन्नी पादिनी है गाइस। तो एवरी डे गाइस स्टार्ट में ना हम लोग एक नेशनल अपना, हम फिजिक्स का ना एक एंथम बनाएंगे, ठीक है? अगर आप में से कोई म्यूजिक कंपोज करना आता है तो गाइस एक एंथम प्यारा सा बनाए। दुनिया गोल है मुनाफिक मोल है, हाँ। अन्नी पादिनी इस बार, अगर अन्नी पादिनी के साथ चलते हैं, ठीक है? एवरी ईयर वी हैव लाइक अ मोटो, हम चेंज करते हैं। कोई तोता है कोई मैना है, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होना है। अच्छा, अगले वाले का गैस, अगले वाले का F&D। नाउ गैस व्हाट इज द यूनिट फॉर F? kg m s - 2। व्हाट इज द यूनिट फॉर D? m kg m स्क्वायर s - 2। एंड गाइस GPE के लिए भी करेंगे तो इट्स गोना बी kg m स्क्वायर s - 2। अब इधर मैं प्रूफ क्या करना चाह रहा था, ये भी kg m स्क्वायर s - 2, ये भी kg m स्क्वायर -2, और ये भी kg m स्क्वायर s - 2। अब गाइज इन तीनों चीजों में गाइज आप लोगों को कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन या जीपीई में, इन सब के यूनिट्स क्या होते हैं? इनके डिराइव यूनिट्स हम लोग क्या लिखते होते हैं एनर्जी के लिए? एनर्जी का डिराइव यूनिट हमारे पास क्या है? जाउल्स, राइट? हम सबके साथ जे लिखते हैं, राइट? काइनेटिक एनर्जी के साथ भी जे लिखते हैं, इधर भी जे लिखते हैं, इधर भी जे लिखते हैं। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू प्रूव ओवर हियर, कि अगर आप एक यूनिट जो है, एक चीज, उसका किसी भी फॉर्मूला से यूनिट फाइंड करें, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा? योर आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम। गाइस ये माइक ड्रॉप वाली बात कर दी है, मेरी पेन बहुत महंगा है वरना मैं गिरा देता, ठीक है? इसे पकड़ लेता। याद रखें गाइस, जो हमारे पास यूनिट सेम होता है, जब डिराइव यूनिट सेम हमारे पास है, मतलब जाउल, आप किसी फॉर्मूला से भी न्यूटन फाइंड करें, आपके पास आंसर सेम आना चाहिए। आप किसी फॉर्मूला से भी जॉल फाइंड करें, आपका आंसर सेम आना चाहिए। आप किसी फॉर्मूला से भी एक्स वाई चीज फॉर्म करें, तो आपके पास उन सब का आपके पास यूनिट सेम आने चाहिए। इज दिस क्लियर? ये बात थोड़े मगज विच बैठ गई है? हाँ, ये देखें, ये कौन है जिसने इतना बड़ा यस लिखा है? मोहम्मद जुनेद अलवी। बस ये शहजादे को गैस
ये ले स्टार गाइस, मेरी तरफ से स्टार। चलें गाइस, 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, आते हैं वापस। एंड गाइस क्लास में वुजू करके बैठा करें, ठीक है। चलें, 5 मिनट्स ब्रेक।
हेलो गिरोज, बैक बैक बैक। मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया था गाइस, 35 पे स्टार्ट करेंगे। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बच्चों के, सर बहुत हो गया आज के लिए गाइस, तो आर यू गाइस टायर्ड? थक गए हैं? क्योंकि इसके बाद आपके पास केमिस्ट्री की क्लास भी है, उसके बाद आपके पास बायो की क्लास भी है। तो देख लें इफ यू गाइस कैन डू दैट। आई हैव नो प्रॉब्लम टीचिंग। ठीक है, चलें, कंटिन्यू करते हैं, चलें। मुझे क्या गाइस, मेरा क्या जा रहा है? मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एनर्जी ओवर टाइम, राइट? सर, will the recording be shared? Yes, it will be shared. हमारे पास क्या है गाइस? एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी हमारे पास क्या था? के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। व्हाट इज टाइम? टाइम इज एस, राइट? अब गाइस ये एस ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? नो, माइनस टू है। एस ऊपर गया तो माइनस थ्री बन जाएगा। मत करें गाइस, मुझे हार्ट अटैक ना दें। के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। और गाइस इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? नो हानिया, दिस इज द फर्स्ट क्लास, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास वी आर हैविंग। इसका यूनिट क्या होता है गाइस हमारे पास? वॉट, वॉट्स, वॉट्स। ठीक है, वॉट। गाइस हलक से निकालना है, अच्छा आप लोगों ने? वॉट। ठीक है, वो आप लोगों ने जिसने वो कारी साहब से पढ़ा होगा, तो काफ जो गले से निकालना होता, ऑइन। आइन नहीं, ऑइन। आप लोग निकाल सकते हैं गाइस वैसे? किस चीज ने कारी साहब से पढ़ा है? एक होता है आइन, एक होता है ऑइन। ऑइन, सही है। हानिया, आप ओ लेवल वाली हानिया तो नहीं है, आप गलत क्लास में आ गई हैं। ये ए लेवल्स की क्लास चल रही है। जुम्मे को क्लास नहीं होती। आई गेस ये इशू हो गया। हनी हनी इन द लॉन्ग क्लास। ये ए लेवल्स की क्लास चल रही है। एंड यू टुक द एंटायर क्लास एज वेल। खैर चले, वो एक्चुअली लिंक एक होता है। चले खैर, हानिया यू कैन लीव। गाइस देखिए, इतनी डेडिकेशन चाहिए कि ओ लेवल की बच्ची ने एएस की पूरी क्लास ले ली है और उसको पता ही नहीं लगा कि हम लोग एएस पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो वेयर वर वी गाइस? के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री पे थे हम लोग, ठीक है। अब ये जो के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री है गाइस, ये होता है हमारे पास वॉट। अब इसके बाद गाइस हम बड़ा सिंपल से अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पावर इज इक्वल टू, विल यूज दिस फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई। आई वॉन्ट यू गाइस टू फाइंड वी। वी हमारे पास होगा पी ओवर आई। सो गाइस वी का हमारे पास यूनिट क्या आएगा? पावर। पावर इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। एंड व्हाट इज आई? आई हमारे पास होता है एम्पेयर। ए, तो ये ए ऊपर जाएगा तो गाइस इसकी क्या पावर होगी? के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए। ए व्हाट? ए रेस टू द पावर ऑफ, जल्दी बोले बच्चों, माइनस वन। बस इतनी आसान सी बात थी। 12। बस गाइस अगर हमारे पास एक और रह गई है, दो तीन और रह गए हैं, वो हो जाए तो बस फिर समझेंगे आपको वो काम हो गया, ठीक है। 12 हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। मैंने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। R इज इक्वल टू वी ओवर आई। गाइस ये मैंने आपको दे दिया, मुझे R के आप ये लोग यूनिट्स बताएं। मुझे R के यूनिट्स बताएं। R के यूनिट क्या होते हैं? रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? यस कुरतलन, ऑफ कोर्स इट इज। नो सारा, यू हैव टू ओपन V। नहीं 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 गाइस, V ओपन करना है, I ओपन करना है। बेस यूनिट्स बताने हैं आप लोगों ने। जैसे देखिए, मैंने इधर P को ओपन किया ना। नो अफिया, आप सारे लोग गाइस, वोल्टेज, अभी हमने वोल्टेज के यूनिट्स फाइंड किए हैं। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, परफेक्ट। ये कौन है? आयशा सिद्दीका। परफेक्ट आयशा, परफेक्ट। गाइस यू हैव टू ओपन दीज वैल्यूज। करें, ट्राई करें, सब ट्राई करें। गोट। के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन ओवर ए। अब ये भी ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन क्या हो जाएगा? माइनस टू। के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू। बस इन्नी सी गल है गाइस, इन्नी सी गल थी आप लोगों के पास, ठीक है। एंड ये हमारे पास कोर्स का सबसे लंबा बेस यूनिट है। अब आप लोग कहेंगे सर ये इतने ज्यादा याद करने हैं सर, कैसे याद होंगे?
बच्चों these are so easy to memorize. Once you are done with a few questions, once you are done with a little bit of practice, ये सारे आपके फिंगर टिप्स होते हैं. आप मुझसे कुछ पूछें. आप मुझे कहते हैं सर वॉट बताएं, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री. आप मुझे कहते हैं सर आप मुझे रेजिस्टेंस बताएं, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू. आप मुझसे वोल्टेज पूछते हैं, ए माइनस वन हो जाएगा. आप मुझसे के पूछते हैं तो इट्स गोना बी, सॉरी, न्यूटन पूछते हैं तो इट्स गोना बी के जी एम एस माइनस टू. आप एक्सेलरेशन पूछते हैं, एम एस माइनस टू. आप कोई भी पूछते हैं, फिंगर टिप्स होते हैं. आप मुझसे मोमेंटम पूछते हैं, मोमेंटम हमने किया नहीं है, मोमेंटम भी कर लें गाइस. मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी. आप मुझसे मोमेंटम पूछते हैं तो हमारे पास हो जाएगा के जी एम एस माइनस वन. ठीक है. आप मुझसे चेंज इन मोमेंटम पूछते हैं तो वो भी के जी एम एस माइनस वन. आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो guys, ये बहुत फिंगर टिप्स पे होते हैं. आप मुझे ये इसलिए नहीं आते क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे इसलिए आते हैं आई बीन डूइंग दिस इन सो लॉन्ग कि बहुत फिंगर. अलीना इट टेक्स टाइम. आई एम नॉट सेइंग पहले दिन पे आपको सारे याद हो जाएंगे, बट बिलीव मी बाय द एंड ऑफ आवर प्रैक्टिस सेशंस, वन वंस वी आर डन विद दोस प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे. ठीक है. Guys, मेरे हाथ थक गए हैं. चिट्टियां कलाइयां में guys, मेरे कलाइयों में दर्द हो गया. यार सॉरी, मेरे ना एकदम से मैं गाने गाने शुरू कर दूं ना क्लास में. ये मेरी बड़ी पुरानी आदत है. मैं अब जैसे कल ही बोला तो दिमाग में गाना आ जाता है एकदम से. ठीक है. उसके बाद गैस क्या करना है सर? अब पढ़ना स्टार्ट कर दें इसके लिए. बिल्कुल अर्शमान. अर्शमान, वेयर आर यू फ्रॉम? अर्शमान मैन. अर्श ईमान. क्वेटा. ओ नाइस शादे. फॉरगॉटन बैंगर. चिट्टियां कलाइयां वे, अब बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां वे. नहीं, बेबी नहीं था, सॉरी. अच्छा सॉरी अर्शमान. सॉरी सॉरी. वो खैर, मैं तो वो मैन आपके नाम वाला मैन कह रहा था. मैं जेंडर तो मैंने अज्यूम, गाइस मैं जेंडर अज्यूम नहीं करता. ठीक है. यू कैन आइडेंटिफाई एज यू वांट. सही है. मतलब यू कैन आइडेंटिफाई एज गोट, यू कैन आइडेंट बैटमैन. सर आपकी वॉइस अच्छी है. नहीं नहीं, बहुत बुरी है गाइस. आई सक एट सिंगिंग. सिंगिंग सही है. आइडेंटिफाई एज अ फेलियर. नाइस शरीफा. सही है गाइस. आई आइडेंटिफाई एज गोट. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. गाइस अब क्लास में एंट्री में गाइस जैसे कहते हैं
या हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? गाइस बिजली नस गई यार, सॉरी गाइस, मैंने अभी ग्रुप में मैसेज भी किया हो, हाल से अभी तक मैसेज डिलीवर नहीं हुआ वो। कैन यू गाइस हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है ना? बहती आवाज़ सारा। सारा नाइस वन गाइस। सारा इस जोक पे I'm gonna गिव यू 1,000 रुपये ईदी, ठीक है? गाइस आपको पता है ना, हम ईदी गिव अवे करते रहते हैं, जो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं गाइस। गाइस पुराने स्टूडेंट्स हमारे ईदी गिव अवे के बारे में तो बताएं ना। अच्छा गाइस, बस क्लास वैसे ख़त्म हो गई है, ठीक है? बस वो अभी बिजली गई तो बस अब क्या है मज़ा। अन्नी पे आ गई गाइस, अन्नी पे आ गई है। हमारे ऊपर गाइस अन्नी पे आ गई है। द पश्तो स्लिप इन योर उर्दू। नहीं नहीं गाइस। हाँ बस गैस, मैंने वो मैसेज भी कर दिया, बिजली चली गई थी। गैस, इज एवरीथिंग क्लियर टुडे? आज हमने जितना किया क्लियर हो गया। कल की क्लास में गैस हमने इससे ज़्यादा नहीं पहनी है, अच्छा हमने पानी है, ठीक है? कल की क्लास में गैस वी नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है? क्योंकि डेमो में मेरा ये था कि हम एक दो चैप्टर कर लें तो ज़्यादा हमारी आसानी होगी, ठीक है? एंड गाइस, एवरी क्वेश्चन इन द लास्ट 5 years जो हमारे पास आया हुआ है ना, हम वो सारे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे, ठीक है? आप लोगों ने गाइस एएस फिजिक्स ना, अगर आपने मेरे साथ सिर्फ क्लास पूरी ली ना, तो आपकी एएस फिजिक्स निकल जाएगी, अच्छा? एंड गाइस क्लास टाइमिंग 7 बजे, कल से 7 बजे